How are you? Students, again you are welcome in this next video of animal tissue. This is the third part of animal tissue. Students, in earlier videos we have discussed about the epithelial tissue and muscular tissue. But in this video we will discuss about the connective tissue and the part of connective tissue, that is proper connective tissue and supporting connective tissue. Blood we will discuss in next video. So students, get ready to study. Watch till end, students, it is interesting. So let's discuss what is connective tissue. First we will discuss what is connective tissue. Connective tissue are the animal tissues which connect one body organ with another body organ. So students, you know very well that any tissue, if suppose two body organs are connected with a tissue, this tissue is known as the connective tissue. Why? Because it connects the two body organs, that is why it is known as the connective tissue. Connective tissue may of the three type: proper connective tissue, supporting connective tissue and liquid connective tissue. So students, these are the three type of connective tissue. These liquid connective tissue are also known as the special connective tissue. Special connective tissue. So what they are, let's try to understand. First we will discuss what is proper connective tissue. Proper connective tissue is the tissue, it is properly found in whole body beneath the skin. You know, when we peeled off our skin, then below the skin this tissue is situated. आपको नहीं पता होगा कि स्किन के नीचे हमारे ये टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं पूरी बॉडी में। स्किन के नीचे प्रेजेंट, यानी कि जहाँ जहाँ स्किन है बॉडी में वहाँ वहाँ ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स, क्या हैं ये सब। सबसे बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। तो ये एरियोलर टिश्यू, आप देखिए प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. What they are? Loose connective tissue and dense connective tissue. So we can say loose connective tissue, जो आप देख रहे हैं ये एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज आर द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट डज इट मीन? लूज का मतलब सारी सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं. लूजली अरेंज, अभी मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा. तो सारी सेल्स ऐसे दूर दूर रहती हैं, सिचुएटेड. तो ये इनको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. और जिन टिश्यूज़ की सेल्स जो हैं वो बिल्कुल सिचुएटेड रहती हैं, एकदम डेंसली पैक्ड रहती हैं, तो इनको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. तो आप समझ सकते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप: लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. सो लूज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप: areolar connective tissue and adipose connective tissue. And dense connective tissue are of also two type: tendons, white fibrous connective tissue; ligaments, yellow fibrous connective tissue. So let's discuss about the areolar tissue. Areolar tissue, what the areolar tissue? Let's understand. So students, you are looking here connective tissue proper. So this figure, it is also given in your NCERT book, and you are very familiar if you have seen it. So students, let's understand, you know, the cells are arranged in this tissue. Loose connective tissue means areolar tissue. This is below the skin. So this is, you know, fibroblast, then red color, this is macrophage. These are the name of cells. So these are different types of cells are together situated below the skin, and together they are called areolar tissue. So macrophage, fibroblast, collagen fibers. You are looking here bluish colors, fiber like structures, they are collagen fibers. So these all are situated loosely or arranged loosely. This is mast cell. Mast cell, then different types of bacteria, virus it can engulf. So these tissue are loosely arranged, that is why it is areolar tissue. And adipose tissue, what it is? Areolar tissue, it is also known as the fat tissue. Fat tissue. So below the skin fat is situated. So you know these are the fat cells.
fat storing area in a cell. This is fat cell, this is another fat cell, this is another fat cell. So these are fat cells, and between these cell you are looking here plasma membrane is connects to each other, यानी कि एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जिन सेल्स के अंदर फैट भरा होता है उनको हम लोग फैट सेल्स कहते हैं, या हम लोग उनको इन टिश्यूज़ को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। तो आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों में फैट बढ़ जाता है, तो फैट क्यों बढ़ जाता है? फैट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये स्किन है, और स्किन के नीचे ये क्या है, एक लेयर पड़ी हुई है किसकी, एडिपोज टिश्यू की। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा फैट इकट्ठा होगा उतना ही क्या होगा, ये लेयर मोटी होती चली जाएगी, और जब लेयर मोटी होती चली जाएगी तो आप जानते ही हैं कि इंसान स्लिम से फैटी हो जाता है। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ proper connective tissue. And next two type of tissues, you know, ligament and tendons. So what they are, ligaments and tendons? Ligaments and tendons are the tissues which are densely arranged. So you can look from here. So students, look on the screen, you are looking here. So देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये दो बोन हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। इन दोनों को, बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ पर ये, तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स। सो लिगामेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं दो बोन्स को। तो बोन टू बोन, यानी कि बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करने वाले, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको लिगामेंट्स कहते हैं। अब आप लोग देखिए, समझिए, जो आपके टेंडन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेंडन्स आपके देखिए ये मसल्स हैं, तो मसल्स के जो एंडिंग पोर्शन होते हैं वो फाइबर लाइक यानी थ्रेड लाइक हो जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से थ्रेड लाइक, जो मसल यहाँ पर बीच में मोटी है और ये बिल्कुल एंडिंग पोर्शन कैसा हो गया? धागे की तरह हो गया, थ्रेड लाइक हो गया। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं टेंडन। सो आपका टेंडन्स हो गए। तो टेंडन्स, और जो बोन्स से बोन को जोड़ते हैं वो क्या होंगे? लिगामेंट्स। अब आप याद कैसे रखेंगे? बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें कि लिगामेंट्स और टेंडन्स, इनको कैसे याद रखा जाए। तो उसको समझने के लिए आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक सरनेम होता है टंडन। आपने कभी अगर सुना हो, आपने एक एक्ट्रेस का नाम तो सुना होगा, रवीना टंडन। सो रवीना टंडन, हर सरनेम इज टंडन। टंडन आप याद कर लीजिए, ठीक है? टंडन मीन्स टेंडन। तो आपका टेंडन और टंडन ये प्रोनाउंस करने में लगभग सेम है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, कभी जब आपने मोबाइल नंबर लिखा होता है तो इस तरह से लिखा होता है। आप जब शॉर्ट में लिखते हैं मोबाइल नंबर, तो आप इस तरह से लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर, यानी कि इसमें से हम मोबाइल का एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो आप देखिए, दो चीज़ हो गई। एक तो आपके टेंडन हम लिखेंगे स्पेलिंग ये, और प्रोनाउंस करेंगे टंडन, और इस तरह से लिख देंगे ये MB। तो इसका मतलब क्या हुआ? टंडन, आगे जोड़ दीजिए जी, टंडन जी का मोबाइल। तो टंडन जी का मोबाइल, MB मतलब मोबाइल, और टंडन जी मतलब टेंडन। तो आपका टेंडन, अब टंडन जी का मोबाइल जैसे ही आपको याद हो जाएगा, तो M और B, M फॉर मसल और B फॉर बोन, यानी कि जो मसल और बोन को जोड़ता है वही क्या होता है? टंडन जी, यानी आपका टेंडन होता है। तो टंडन जी का मोबाइल आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। तो आपका मसल से बोन को जोड़ने वाले जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग, या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनको हम लोग टेंडन कहते हैं। तो आपका टेंडन समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन अगर हम लिगामेंट्स की बात करें, तो लिगामेंट्स अब आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, लिगामेंट्स जो है, जब एक मसल को बोन से जोड़ रहा है तो दूसरा कौन सा जोड़ेगा? दूसरा बोन से बोन को जोड़ेगा, बस याद हो गया। तो आपको दूसरा जो बचा वो कौन सा है? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट किसको जोड़ेगा? बोन से बोन को। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, ट्रिक से कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।
तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्वस टिश्यू हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, आपको हमने अभी बताया था, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का? लूज कनेक्टिव टिश्यू एक्ट्स एज द पैडिंग अंडर स्किन एंड एल्सवेयर। आप लोग जानते हैं हर जगह पर प्रेजेंट होता है, और पैडिंग का काम करता है मतलब स्किन के नीचे एक फाई की तरह या फिर स्किन के नीचे एक बेस की तरह काम करता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, यानी कि हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट। तो आप देखिए एक बार फिर से चार्ट देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि और हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था ये एरियोलर और एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट भी पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? बोन और कार्टिलेज। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अब। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं उसी स्क्रीन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम लोग देखें सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं, तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें जो हमें सपोर्ट करें, हमारी बॉडी को अंदर से सपोर्ट करें। यानी कि आप लोगों ने कभी देखा होगा गांव में जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या गांव में मिट्टी के जो चूल्हे बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गांव में लोग उन मिट्टी के साथ क्या मिला देते हैं, मिट्टी के साथ थोड़ा सा घास के टुकड़े या फिर भूसा मिला देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो मिट्टी है उसको इस तरह से दीवार की तरह खड़ा करने पर मिट्टी लचकती नहीं है, इस तरह से मिट्टी नीचे नहीं गिरती है, टूटती नहीं है, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, अंदर से सपोर्ट आ जाती है। तो इसी तरह से बोन है हमारी, तो बोन भी क्या करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं। अगर सपोज आप इमेजिन करिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती तो यू आर जस्ट लाइक अ पाउच ऑफ वाटर। आपने वाटर पाउच देखा होगा, जो आजकल पाउच वाटर के मिलते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, वाटर होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। तो इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर, आप इमेजिन करके देखिए, आपको बहुत हंसी आएगी। आप सोचिए कि आपकी बॉडी के अंदर अगर बोन्स ना हो तो जस्ट लाइक अ पाउच ऑफ वाटर, यानी कि आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हो जाएगी आपकी बॉडी। तो इसीलिए हमारे ये वाले टिश्यू जो होते हैं, जो बोन्स और कार्टिलेज, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं अंदर से। तो सपोर्टिंग टिश्यू इसीलिए इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए तो ये आपका सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, ये है आपका बोन और ये कौन सा है, कार्टिलेज। अब एक स्टूडेंट्स आपको बात बता दें, देखिए कार्टिलेज भी सेल से मिलकर के बना होता है, और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सी सेल्स? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स विच फॉर्म्स द कार्टिलेज। क्या बनाती हैं? कार्टिलेज बनाती हैं। तो कार्टिलेज बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, याद रखिए आप लोग। इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो आप कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम लोग कार्टिलेज सेल कहते हैं। कोलेजन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने होते हैं, इस तरह से धागे की तरह होते हैं, जो इनको आपस में जोड़े रखते हैं और इनको थोड़ा सा मतलब एक इनको भी स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा। अब बात क्या है, कार्टिलेज क्या होती है और कहाँ होती है। तो आप लोग जानते हैं, आप सबसे सॉफ्ट पोर्शन आपका जो ईयर, आपका कान, यानी कि जिसके अंदर हमको पकड़ने पर ऐसा भी लगता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, यानी बोन की जैसे बहुत पतली एक पेपर लाइक पेपरी बोन कह सकते हैं, तो पेपरी बोन है उसके अंदर, लेकिन वो बोन नहीं है, वो क्या है, कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे ईयर में होती है, और कहाँ होती है, नोज में। तो नाक का आपका आगे वाला हिस्सा है नोज का, जो जिसको हम लोग नोज टिप कहते हैं। आप अपनी नोज पकड़ करके देखिए, तो नोज टिप आपकी ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसी बोन लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल होती है, या फिर ऐसा हमारा अंदर स्ट्रेंथ देने वाला टिश्यू जो हमारा सपोर्टिंग टिश्यू कहलाता है और फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कौन होगा, बोन। तो बोन तो आप लोग जानते ही हैं, बोन में स्टिफनेस होती है, हार्डनेस होती है, तो उसको हम लोग हार्ड बोन्स कहते हैं, यानी कि बोन नाम दे देते हैं। अब बोन को बनाने वाली सेल, बोन्स के अंदर भी सेल्स होती हैं, तो बोन को बनाने वाली सेल्स आप लोग देख ही रहे हैं, ये क्या होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ बोन।
तो ये सारी सेल्स मिलकर के बोन्स बनाती हैं। अब बात करते हैं, चलिए देखिए ये जो है ए और बी जो डायग्राम हमारे दिए हुए हैं, ये किसके दिए हुए हैं, यहाँ पर ये कार्टिलेज का डायग्राम दिया हुआ है और ये किसका डायग्राम दिया हुआ है, बोन का। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं और डिटेल से बोन और कार्टिलेज के बारे में। आपको डिफरेंस में भी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये बोन जो होती है, बोन तो आप लोगों ने देखी ही है। तो बोन के ऊपर इस तरह से अगर हम लोग देखें तो उसका जो बोन के एंडिंग पोर्शन होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पॉन्जी। तो स्पॉन्जी पोर्शन होते हैं, यहाँ पर बोन थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन मिडिल में बोन कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। कैसी होती हैं? हार्ड। अब आप लोग जानते हैं कि जब सेल बोन्स के अंदर होती हैं तो सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन करता है? आप लोग देखना, ये ब्लड वेसल जा रही है। तो ये ब्लड वेसल्स सेल्स के अंदर फैली होती हैं, जगह जगह पूरी ब्रांचिंग इनमें होती है बोन्स के अंदर। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। यानी कि जो बोन की सेल्स को सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में, यानी कि जो हमारी बोन जो थिक बोन होती हैं, इलोंगेटेड बोन होती हैं, तो उन बोन के अंदर क्या होता है? खाली जगह पर होती है। तो ये खाली जगह जो होती है वो क्या होती है? इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं मैरो। क्या कहते हैं? मैरो। अब ये मैरो क्या है? मैरो खाली जगह किसमें है? मैरो के। लेकिन वो खाली जगह उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैरो कैविटी। क्या कहते हैं? मैरो कैविटी। तो मैरो कैविटी खाली जगह को कहते हैं। और उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल होता है, जो लिक्विड होता है, और जो सेल्स अंदर जो टिश्यूज भरे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैरो। और जब बोन के अंदर भरी होती है मैरो तो उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो खाली जगह है बोन के अंदर, जो खोखला भाग है, एम्प्टी प्लेस है, तो हॉलो पोर्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मैरो कैविटी। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बोन मैरो। क्या भरा है? बोन मैरो। क्योंकि ये किसके अंदर? बोन के अंदर है, इसीलिए उसको बोन मैरो कहते हैं। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसी बोन मैरो के अंदर अभी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ब्लड। तो जितने भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब किसके अंदर बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो आप देख लीजिए अभी यहाँ पर बोन मैरो क्या है। तो अब क्लियर हुआ होगा आपको। ये देखिए आपका कॉन्ड्रोसाइट्स जो अभी मैंने बताया है, जो आपकी सेल्स होती हैं कार्टिलेज की, वो इस तरह की दिखती हैं। तो ये इस तरह की सेल्स हैं। और ये सेल्स जिन छोटे छोटे होल इस तरह से कैविटी होती हैं, उन कैविटी के अंदर इस तरह से सेल पड़ी होती हैं ये। तो इन कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? लैकुना। तो ये लैकुना कैविटी के अंदर ये इस तरह से सेल्स पड़ी होती हैं, तो कैविटी को लैकुना कहते हैं। और यहाँ पर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है। आगे चलते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होते हैं कार्टिलेज और बोन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पूरा एक चार्ट दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ। इन मेन कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, ईयर, ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होती है? आप जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारी ट्रैकिया होती है, तो ट्रैकिया की जो ब्रांचिंग होती है उनको ब्रोंकियल या ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं उनको। ये रिंग ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के ऊपर जो सी शेप रिंग आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, इस तरह से बहुत सारे आप पकड़ करके भी अपना जो गर्दन में आपका ट्रैकिया है उसको पकड़ करके आप देख सकते हैं श्वास नली। तो श्वास नली को पकड़ेंगे तो ऊपर से इस तरह से ये थोड़े रिंग जो आपको हार्ड, थोड़े से सॉफ्ट या इलास्टिक रिंग नज़र आएंगे, तो इनको हम लोग रिंग ऑफ ट्रैकिया कहते हैं। बिटवीन वर्टिब्री और वर्टिब्री के बीच में, यानी कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी बैकबोन है, तो बैकबोन के एक इस तरह से कॉलम में दो के बीच, यानी कि ये देखिए वर्टिब्री हैं छोटी छोटी, इनके बीच में ये कुशन की तरह काम करती है कार्टिलेज। क्योंकि जब हम लोग चलते फिरते, उछलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारी जो ये बोन्स में रविंग ना हो, तो ये कुशन की तरह काम कौन करता है? कार्टिलेज करती है।
फिर इसके बाद हम लोग देखें तो कार्टिलेज में और क्या फीचर्स होते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ नॉन पोरस, मतलब इसमें छेद नहीं होते, जैसे आपको अभी बताया था स्पॉन्जी होती है बोन, लेकिन ये स्पॉन्जी नहीं होती है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नहीं होती है। इसमें नर्व्स होती हैं, तो जब ब्लड वेसल नहीं होती है तो फिर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कैसे होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। किससे, डिफ्यूजन, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं जो हमारी कार्टिलेज होती है वो वैसी कैसी होती है, पेपरी होती है, यानी कि बहुत पतली होती है। तो पेपरी होती है, पतली होती है, तो डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा, तो इसीलिए इनके इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती है। फिर इसके बाद इट इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक नोज, ईयर, ब्रोंकियल ट्यूब्स, रिंग ऑफ ट्रैकिया बिटवीन वर्टिब्री एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स। तो आपके जो डेलिकेटेड बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके नाजुक बॉडी पार्ट्स हैं, उनको सपोर्ट देने का काम कौन करता है, कार्टिलेज करती है। बोन क्या होती है, इट इज़ हार्ड एंड रिजिड टिश्यू, इट इज़ पोरस, इट हैज़ अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। क्यों होती है ब्लड वेसल की सप्लाई, क्योंकि ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, तो इनमें डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए सारी सेल्स को ब्लड और मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई देने के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ द मेन स्केलेटल टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी का मेन स्केलेटल टिश्यू होता है। आप लोग को अभी बताया कि अगर बोन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी कैसी दिखेगी। इट गिव्स सेफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, यानी कि हमें सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है और स्ट्रेंथ देता है अंदर से। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। सो आज के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को अगर आप अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है वीडियो जो मैं बनाता हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।